السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تمرین النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے بات آئی اور مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا کہ فعل ماضی ایسا فعل ہے جس کے اندر کسی کام کے زمانہ ماضی میں ہونے کا معلوم ہو، یعنی کسی کام کے زمانہ گزشتہ میں ہونے کو بتلائے تو ایسا فعل ماضی ہوگا۔ آئی بات میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں مؤلف نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ دی ہیں۔ آج کے درس میں فعل ماضی کی گردان کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی اس کے مختلف صیغے، اس کے بارے میں آج کے درس میں پڑھیں گے۔ یاد رہے فعل کی جو شکل ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی فعل لے لیجیے آپ، جو ایک شکل ہوتی ہے فعل کی، اس فعل کی شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف صیغے ہیں، شربا ہے، شربا، شربو، شربت، شربتا، شربنا، شربتا، شربتما، شربتم، شربتے، شربتما، شربتنا، شربتو، شربنا۔ تو یہ مختلف صیغے، یہ مختلف شکلیں ہیں فعل کی، اور یہ شکلیں جب ہم سمجھ لیں گے تو آسانی سے فعل کی گردان کر سکتے ہیں، فعل کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فعل ماضی کی گردان ہے اور یہ اس کے مختلف صیغے ہیں۔ انسانوں میں دو جنس ہیں، ایک مذکر ہے، ایک مؤنث۔ تو اس اعتبار سے عربی زبان میں مذکر کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ صیغے ایسے بھی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں سنگل کے لیے، ایک کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زائد یعنی جمع کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کچھ صیغے ایسے ہیں جو مذکر اور مؤنث یا اسی طرح سے تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 14 صیغے عربی زبان میں آتے ہیں، فعل کے 14 صیغے آتے ہیں، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا اسی طرح سے فعل مضارع ہو۔ ہر ایک کے یہ 14 صیغے آئیں گے، اور وہ 14 صیغے کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں، مؤلف نے کتاب میں دیے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں۔ اور کون کون سے صیغے ہیں وہ بھی اس کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ آسانی سے ہم کسی بھی فعل سے ان صیغوں کو سمجھنے کے بعد گردان فعل ماضی کی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہلا صیغہ شربا ہے، تو شربا یہ ایک ایسا صیغہ ہے جو تمام علامتوں سے خالی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی علامت نہیں ہے، ہر علامت سے خالی۔ شربا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے۔ شربا کا مطلب واحد مذکر غائب کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ مذکر کے لیے آیا ہے، نر کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک کے لیے استعمال ہوا۔ شربا، اس ایک مرد نے پیا، شربا اس ایک مرد نے پیا، یعنی زمانہ گزشتہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا صیغہ ہے شربا الف کے ساتھ، یہ علامت ہے الف، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ شربا ان دو مردوں نے پیا زمانہ گزشتہ میں، تو تثنیہ مذکر غائب کی علامت یہ الف ہے۔ واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں الف بڑھا دیجئے، تثنیہ مذکر غائب ہو گئے۔ تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا صیغہ ہے
शरबू, उन सब मर्दों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। ये वाव और अलिफ, वाव साकिन और अलिफ ये अलामत है, वाव ये अलामत है जमा मुज़क्कर गायब की। आई बात में? हाँ, तो ये वाव ये जमा मुज़क्कर गायब की अलामत है और इससे हम आसानी से समझ सकते हैं जहाँ जिस सेगे के आखिर में वाव आ रहा है वो जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। तो शरबू का माना होगा उन सब मर्दों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। इसी तरह से ये 3 सेगे मुज़क्कर के हुए गायब में, एक वाहिद का सेगा, इसी तरह से दूसरा तस्निया का सेगा और तीसरा जमा का सेगा। अब मुअन्नस के सेगे हैं, कहते शरबत, उस एक औरत ने पिया। वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है और इसमें ता साकिन ये अलामत है इसके वाहिद मुअन्नस गायब होने की, यानी ये वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत है। शरबत में ताए साकिना, ताए साकिन जो है ये वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत है। इसी तरह से शरबता, उन 2 औरतों ने पिया, यहाँ ता और अलिफ ये अलामत है तस्निया मुअन्नस गायब की, ठीक है। और इसी तरह से शरबना, ये शरबना उन सब औरतों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। शरबना में ये नून, ये नून ज़मीर भी कहा जाता है इसको, और इसी तरह से नून निस्वा भी इसे कहा जाता है। ये अलामत है इस बात की कि ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है, जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। तो ये नून आखिर में जो बग़ैर अलिफ के आ रहा है, यानी उसके आखिर में उसके साथ अलिफ लगा हुआ नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि ये जमा मुअन्नस गायब का सेगा है। तो शरबना जमा मुअन्नस गायब का सेगा हुआ और माना है उन सब औरतों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। तो ये 3 सेगे मुअन्नस के हुए और इसी तरह से इससे पहले 3 सेगे मुज़क्कर के हुए और इसी तरह से इनमें से हर एक के वाहिद, तस्निया और जमा के सेगे हैं, यानी एक वाहिद का सेगा है और इसी तरह से एक तस्निया और जमा का और इसी तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस में है। अब यहाँ हाज़िर के सेगे, कभी कभी पर्सन जो है वो 3 होते हैं, जैसा कि हर ज़ुबान में है तो ऐसे ही अरबी ज़ुबान में है। एक फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होता है, मुतकल्लिम जिसे कहा जाता है, और सेकंड पर्सन जिसे सेकंड पर्सन मतलब यू, मुखातिब जिसे कहा जाता है, तुम, यानी जिससे भी बात की जा रही है तो वो जो है सेकंड पर्सन होता है और उसे कहते हैं हाजिर, अरबी ज़ुबान में उसे कहते हैं हाजिर। इसी तरह से हाजिर के लिए भी इसी तरह से 3 सेगे होंगे, 3 मुज़क्कर के लिए और 3 मुअन्नस के लिए। तो मुज़क्कर के जैसे शरबता, तू एक मर्द ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में, और यहाँ इसके वाहिद मुज़क्कर हाजिर होने की अलामत ता के ऊपर फतहा, यानी जो ता है और इसी तरह से उसके ऊपर फतहा आ रहा है, तो शरबता, शरबता, ता ये अलामत है इसके वाहिद मुज़क्कर हाजिर होने की। इसी तरह से शरबतुमा, तुम 2 मर्दों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में, तुम 2 मर्दों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। तो यहाँ तुमा ये तस्निया की अलामत है और याद रहे शरबतुमा में जो तुमा है ये तुमा मुज़क्कर तस्निया की अलामत भी है और इसी तरह से मुअन्नस तस्निया की भी अलामत, यानी हाजिर के ये दोनों सेगों की अलामत है। क्योंकि यहाँ शरबतुमा मुअन्नस में भी ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का भी शरबतुमा ही होगा। जिस तरह से यहाँ शरबतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, ऐसे ही शरबतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है। इसी तरह से शरबतुमा आएगा, ठीक है। तो याद रहे तुमा ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर और इसी तरह से तस्निया मुअन्नस हाजिर दोनों की अलामत है।
शरिबतुमा में तुमा जो है ये दोनों की अलामत है, जैसा कि हमने यहाँ देखा शरिबतुमा और इसी तरह से शरिबतुमा यहाँ आगे भी आ रहा है। इसी तरह से शरिबतुम, तुम सब मर्दों ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में। शरिबतुम, तुम ये अलामत है जमा मुज़क्कर हाजिर की, आई बस में। और इसी तरह से शरिबती, तू एक औरत ने पिया ज़माने गुज़िश्ता में, ये वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत है। ता के नीचे कसरा है, ये ताए मकसूरा, ये अलामत है वाहिद मुअन्नस हाजिर की। और शरिबतुमा के बारे में अभी बतलाया गया कि ये तस्निया मुअन्नस हाजिर की भी अलामत है। इसी तरह से शरिबतुन्ना, तुम सब औरतों ने पिया, तो शरिबतुन्ना, तुन्ना जो है ये अलामत है जमा मुअन्नस हाजिर की, ये अलामत है तुन्ना, ये जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत है, आई बस में। तो ये हाजिर के सेगे यहाँ हमने मालूम किया कि उनकी क्या क्या अलामतें हैं, हाजिर के सेगों की क्या क्या अलामतें हैं ये मालूम। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन जिसे मुतकल्लिम के जो सेगे होते हैं उसकी बात आती है। थर्ड पर्सन यानी गायब के सेगे ये पहले हमने बतलाए, और इसी तरह से सेकंड पर्सन यानी हाजिर के सेगे इसके बारे में। अब ये फर्स्ट पर्सन आता है, और फर्स्ट पर्सन में याद रहे शरिबतू, ये वाहिद मुज़क्कर और इसी तरह से वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। शरिबतू मैंने पिया, चाहे मर्द हो या इसी तरह से औरत, हर एक के लिए इसी तरह से इस्तेमाल होगा। शरिबतू मैंने पिया, आई बात में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से ऊपर गायब के सेगों में फ़र्क है, शरिबा है, शरिबत है, और शरिबता है या शरिबते है, लेकिन मुतकल्लिम के सेगों में कोई फ़र्क नहीं है। शरिबतू जिस तरह से मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे ही मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। शरिबतू मैंने पिया, यही बात अगर कोई मुअन्नस है तो वो भी यही कहेगी, शरिबतू मैंने पिया, आई बात में। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। तो शरिबतू में ये वाहिद मुतकल्लिम की अलामत ता मज़मूम यानी ता के ऊपर ज़म्मा है, तो ये अलामत है इस बात की कि ये वाहिद मुतकल्लिम है, ये सेगा वाहिद मुतकल्लिम का है। इसी तरह से शरिबना, हम सब ने पिया, तो शरिबना ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। याद रहे मुतकल्लिम के सेगों में शरिबना ये तस्निया और इसी तरह से जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। शरिबना अगर दो हैं, चाहे मर्द हो या औरतें, तो वो शरिबना ही कहेंगे, हमने पिया। या इसी तरह से दो से ज़ायद हैं, मर्द हो या औरतें, तब भी वो शरिबना ही कहेंगे, आई बात में। इसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, और ये इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो ये फ़ेल माज़ी के जो सेगे हैं उनकी क्या अलामतें हैं, इसके बारे में आज के दर्स में हमने पढ़ा, और ये हमें मालूम हुआ कि वाहिद मुज़क्कर का गायब का सेगा ऐसा है, एक सेगा है जिसके अंदर कोई अलामत नहीं है, सारी अलामतों से खाली है, तो वो वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। और उसके बाद अगर उसी सेगे के आखिर में अलिफ बढ़ा दिया जाए तो वो तस्निया मुज़क्कर गायब का सेगा हो गया। वाव और आखिर में अलिफ लगा दिया जाए तो वो जमा का सेगा हुआ। और इसी तरह से ता साकिन अगर उसके आखिर में जोड़ दी जाए तो वो वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा हुआ, और ता अलिफ जोड़ दिया जाए तो वो तस्निया मुअन्नस गायब का सेगा हुआ। और इसी तरह से नून आखिर में नून मफ्तूह दाखिल कर दिया जाए
تو وہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا یا وہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ شربتا میں یہ تا جو ہے اس پر فتحہ کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو یہ واحد مذکر حاضر ہے۔ یا شربتما میں تما یہ مذکر اور مؤنث تثنیہ دونوں کے لیے حاضر کی جو ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شربتم میں تم، تو یہ بات معلوم ہوئی۔ اسی طرح سے ہم دوسرے افعال سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بھی افعال ہیں ان میں صرف یہی علامتیں جوڑنا ہے ہمیں۔ واحد کا صیغہ ہم نے لے لیا، علمہ ہے تو علمہ، علمہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، اور اسی طرح سے علمتا، علمتما، علمتم، علمتے، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے افعال ہیں، ہم ان سے گردانیں اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو آج کے درس میں یہ تمرین نمبر 1 میں ہم نے فعل ماضی کی گردان اور اس کے مختلف صیغوں کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔